अब टिल नाउ हम रेडिएशंस के बारे में मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड इन MDCAT हम पढ़ चुके हैं. So the last remaining concept is the biological effects of radiation and the uses of radiations. So biological effects of radiations, they depend upon the type, energy and dose of radiation. यानी depend करता है कि radiation आप जो expose हो रही है, that is alpha, beta, gamma, neutrons or whatever the radiation is. Then the energy of radiation यानी कितनी energetic है, and then the dose of radiation is very very important. यानी कि अगर लो डोज पे है तो यूजुअली कोई इफेक्ट नहीं होता, while high dose of any radiation causes always harmful effects. Then there are two types of damages to living bodies. First damage is somatic and the second is genetic. हम इन दोनों को separately discuss करते हैं. So what are the somatic effects? Soma, it means body. So somatic effects generally mean के body के living cells या parenchyma के ऊपर क्या effect पड़ रहा है. So it is the direct effect on parenchyma, which is the living or functioning cells of body. इसके अंदर hair loss हो सकता है, skin burns हो सकते हैं, which are very very common in case of radiation burns, ulcerations हो सकती हैं, drop in blood cells हो सकते हैं due to mutation, eye contraction हो सकती है, and these effects are reversible if mild. यानी अगर skin burn है तो second degree skin burn तक अपने आप heal हो जाता है. Hair loss is reversible, we can transplant hair. Ulceration भी reversible है. Drop in blood cells is also reversible. Permanent इलाज इसका bone marrow transplant है, वरना simply भी reverse हो सकता है by transfusing blood, and eye contraction is also possible by operation. So the next is genetic effects. Genetic effects नाम से जाहिर हो रहा है कि जीन के ऊपर या फिर DNA लेवल के ऊपर जो है म्यूटेशन है या फिर effect है on the body of living beings. So it is the mutation in DNA. It causes cancer, जिसे हम normally tumor भी कहते हैं in medical terms. It is the uncontrolled cell division. यानी normally ये होता है कि जब cells divide करते हैं तो DNA के अंदर specifically stored information होती है जो कि control करती है the rate of division. लेकिन अगर uncontrollably cells divide कर रहे हो तो उसे हम cancer या फिर tumor कहते हैं. So these effects are irreversible क्योंकि damage जो है वो DNA के ऊपर है. अब DNA जब डैमेज हो चुका है तो पूरी सेल की मशीनरी और उसका जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वही खराब हो चुका है. सो दीज आर इरिवर्सिबल एंड इनहेरिटेबल क्योंकि DNA के ऊपर ही सेल डिवीजन बेस कर रही होती है. सो नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ रेडिएशन, यानी प्रैक्टिकली रेडिएशन का क्या इस्तेमाल है. कार्बन 14 इज यूज्ड टू ट्रेस फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डेटिंग. तो जैसे कि हम आइसोटोप्स के बारे में बात कर चुके हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी इनका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर सेम बिकॉज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो जहाँ जहाँ पे नॉर्मल आइसोटोप यूज हो सकता है वहाँ पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप भी यूज हो सकता है. अब कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है तो हम नॉर्मल कार्बन की जगह अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो हम इसे व्यू कर सकते हैं. सो वी कैन व्यू द पाथ ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस. और फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर हम कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वी कैन सी कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है. सेकंड, इसका इस्तेमाल जो है कार्बन डेटिंग में है, यानी वी कैन एस्टिमेट द टाइम which has been spent after the death of a certain organism. आयोडीन 131 और सोडियम 24 पाइपलाइन के क्रैक्स को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. Cobalt 60 and iodine 131 are used in treatment of cancer because उनके अंदर से हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलती हैं जो कि फोकस करके हम किसी सेल के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो कैंसरस सेल masses can be destroyed. Then tumors can be treated by highly controlled gamma rays जो कि usually cobalt 60 से आती है. So radioactivity in space tells us about cosmic objects, यानी stars वगैरह के बारे में या different planets के बारे में हम उनकी radioactivity से अंदाज़ा लगा सकते हैं. Then sterilization के लिए यानी for killing the bacteria etc and different pathogens हम इस्तेमाल करते हैं radiation को. Strontium 90 is a beta ray source. So
अगर हमें बीटा रेज चाहिए हो फॉर प्रैक्टिकल यूजेस तो हम स्ट्रोंशियम 90 को इस्तेमाल करते हैं। देन बीटा रेज आर यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन थेरेपीज, क्योंकि बीटा रेज की जो पेनिट्रेशन होती है काफ़ी कम होती है बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लो मास, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनको स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट करना, डेविएट करना काफ़ी ईजी होता है, सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट वेरी डीप। सो सुपरफिशियली जब स्किन की हम थेरेपी करते हैं जो कि ज़्यादा डीप नहीं होती है, उसके लिए हम बीटा रेज इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीप स्किन थेरेपीज के लिए हम गैमा रेज इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई पेनिट्रेशन। Then technetium-99 is used for positron emission tomography. Tomography is a technique used for imaging. So tomography के different types होती हैं, जिसके अंदर कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, एक टाइप है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसे हम पीईटी कहते हैं। उसमें टेक्नीशियम 99 इस्तेमाल होता है ड्यू टू एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन्स। देन लेड 206 to uranium 238 रेशियो डिटरमिन्स रॉक एज, यानी किसी भी ओल्ड रॉक की एज डिटरमिन करने के लिए हम लेड 206 और यूरेनियम 238 का रेशियो लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ रेडिएशन, एंड इसके साथ हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।